Hello everyone, how are you all? Welcome back to our channel EduSite. In today's video, we bring to you session 2 of English vocabulary. Those who are starting afresh and haven't watched our previous video of session 1 on English vocabulary, I insist you to please go through that video first and then come back to this video, as a lot that will be discussed in this video relates to the previous video. For your convenience, the link of the session 1 of English vocabulary is provided in the description box. So let us start the second video of vocabulary by EduSite. As you can see, this is the session 2 on English vocabulary. Like in the previous video, we discussed words related to a particular type, that is different personality types one can have. Similarly, in this video, we will be taking a particular type of words and understand those words and words related to them. Okay? So today, we will be talking about liars. Now tell me students, how many different types of liars can be there? What all adjectives can be there to describe one's lying habits? Can a liar be bad, irresponsible or careless? But these words like bad or careless are too easy for one's vocabulary. The words we will discuss today are slightly more complicated and difficult to understand than these words. My job today would be to bring to you such new words and eliminate the part that says difficult to understand. So let us take up our very first type of liar, which is notorious liar. What does it mean? Notorious liar is someone who is well known for something bad. मतलब जो फेमस हो लेकिन बदनाम हो किसी चीज़ के लिए. और हम लायर पढ़ रहे हैं, सो वो अपनी लाइंग हैबिट्स के लिए बदनाम है, राइट? हु इज़ फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, राइट? सी, हम लायर के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव नोटोरियस यूज़ कर रहे हैं, राइट? नोटोरियस एडजेक्टिव किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, लाइक प्लेयर के लिए भी हो सकता है, नोटोरियस प्लेयर भी हो सकता है, नोटोरियस किलर भी हो सकता है. ओके, मेरा पर्पज़ यहाँ पर इन वर्ड्स को क्लियर करना है, जैसे कि ये नोटोरियस है बाय रिलेटिंग टू द लायर. ओके, तो अब हम नोटोरियस वर्ड का ओरिजिन डिस्कस करते हैं, रूट वर्ड जहाँ से ये वर्ड आता है, which is notus, N-O-T-U-S, which means known, जिसे जानते हो सब, राइट? अब नोटोरियस का मतलब हो गया वेल नोन फॉर समथिंग बैड. इट मीन्स नोटोरियस एक नेगेटिव वर्ड है, राइट? आई एम मेंशनिंग हियर इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड. नेगेटिव सेंस में ये यूज़ होता है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, और मैंने पहले भी बताया था, नोटोरियस लायर, notorious killer, notorious gambler. These all are in negative sense, right? Let us take up our next word, consummate liar. Who is a consummate liar? A person who have reached the zenith of perfection. जो अपनी झूठ बोलने की आदतों में perfect हो चुका हो. That is the one who have mastered the art of lying. Okay? हेयर यू कैन सी, मैंने जेनिथ वर्ड को हाईलाइट किया है यहाँ पर. इट मीन्स द हाइएस्ट पॉइंट, और लाइक द पीक ऑफ द माउंटेन. ओके, हेयर कॉन्ज्यूमेट कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड समस. ओके, समस मीन्स हाइएस्ट. हेयर यू कैन सी इन कॉन्ज्यूमेट SUMM. These 4 letters relates to the root word samas. Okay, now before discussing the meaning of the word consummate in general, let us discuss the word summit related to the root word samas. Okay, summit का मतलब होता है the top of mountain. Okay, जैसे मैंने बताया था, जेनिथ का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट होता है, राइट? एंड
we have discussed this summit also means the top of mountain. So these two words are synonyms. So summit का एक तरह से synonym हो गया zenith. ओके अब summit का एक और मीनिंग भी होता है which I am discussing. It also means high level meeting. ओके अब आप कहोगे कि ये समस वर्ड रूट से कैसे रिलेटेड है. समन्स मीन्स हाईएस्ट, राइट. जैसे बड़े बड़े समिट्स होते हैं लाइक सार्क समिट, अर्थ समिट, जो बड़ी कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है, राइट. जो हाईएस्ट ऑर्डर की मीटिंग्स होती हैं उन्हें हम समिट कहते हैं, मीटिंग ऑफ हाई लेवल. ओके तो ये दो मीनिंग्स हो गए समिट के, राइट. वन मोर थिंग टू से, हम समिट को हिंदी में शिखर वार्ता भी बोलते हैं. हाई लेवल मीटिंग, लाइक यू नो दैट शिखर मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन, राइट. अब समिट के डिस्कशन के बाद हम फिर से कॉन्ज्यूमेट पर आते हैं. अभी हमने डिस्कस किया था कॉन्ज्यूमेट लायर. कॉन्ज्यूमेट लायर इज द वन who have mastered the art of lying. So in general, what does consummate means in this form? Who have reached the highest point of perfection in his skill or her skill. जैसे सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, राइट. वो इतने बेहतरीन क्रिकेटर थे कि हम उन्हें बोलेंगे कि कॉन्ज्यूमेट क्रिकेटर थे वो, मतलब उनकी क्रिकेटिंग में परफेक्शन थी, राइट. जैसे साइना नेहवाल अपनी बैडमिंटन स्किल्स में परफेक्ट थी, तो हम उन्हें बोलेंगे कि शी वॉज अ और शी इज़ अ कॉन्ज्यूमेट बैडमिंटन प्लेयर. ओके जैसे हमने समिट के दो मीनिंग्स डिस्कस किए थे, राइट. सो हम सेकेंड मीनिंग डिस्कस करते हैं कॉन्ज्यूमेट का. टू ब्रिंग समथिंग टू इट्स कंप्लीशन, किसी काम को उसके अंत तक पहुंचाना, अंत तक लाना, मतलब वो काम खत्म करना, राइट. हियर यू कैन सी द रूट वर्ड इज समस. SUMM here relates to the root word in consummate word, okay, which means samas means highest. अब आप मुझे बताओ, आप एक काम को कब कंप्लीट करते हो? जब आप उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हो. जैसे आप एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो सपोज, तो आपकी क्लाइंब कब कंप्लीट मानी जाएगी, कब कंप्लीशन माना जाएगा आपकी क्लाइंब को? जब आप उस माउंटेन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचोगे, right. So in this way this meaning relates to the root word, right. Now we will discuss some examples. To consummate a business deal, जैसे हमने consummate liar पढ़ा था, इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. टू कॉन्ज्यूमेट अ बिजनेस डील विच मीन्स एक डील को फाइनल करना, एग्री करना एक डील पर बाय साइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस. Okay, in similar way you can take up the example to consummate a marriage or to consummate a contract, right. Now let us move on to the next type of liar, incorrigible liar. A liar who cannot be corrected, मतलब ऐसा झूठा जिसको सुधारा ना जा सके. The one who will continue on the lying path despite the punishment or एम्बेरसमेंट. उसको कितना भी पनिश किया जाए, एम्बेरस किया जाए उस लायर को, लेकिन वो नहीं सुधरेगा, उसने झूठ बोलना ही बोलना है. ओके ऑल द एफर्ट्स टू करेक्ट देम आर टू नो अवेल. उन लायर्स को करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए जितने भी एफर्ट किए जाए सब बेकार हैं. ओके नाउ लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ इनकॉरिजिबल फ्रॉम इट्स रूट वर्ड corrigo, which means to correct or to set straight. मीन्स करेक्ट करना या सही करना. ओके नाउ एज यू कैन सी हेयर आई हैव स्प्लिट द वर्ड इनकॉरिजिबल एज इन प्लस कॉरिगो प्लस एबल. कॉरिगो मीन्स एज यू नो टू करेक्ट एंड साथ में एबल लग गया. सो कॉरिजिबल मीन्स
जिसको सही किया जा सके। जैसे कि वर्ड होता है मैनेजेबल, मैनेज का मतलब मैनेज करना, मैनेजेबल हो गया जिसको मैनेज किया जा सके, राइट। सो कॉरिजेबल मतलब हो गया करेक्ट किया जा सके, एंड साथ में इन यूज हो रहा है, एज यू कैन सी राइट इन दिस वर्ड। इन कब यूज होता है? जब हम अपोजिट वे में वर्ड को यूज कर रहे हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, आई हैव रिटन हेयर द वर्ड्स इनकरेक्ट एंड इनविजिबल। करेक्ट का अपोजिट हो गया इनकरेक्ट, एंड विजिबल का अपोजिट इनविजिबल। इन सिमिलर वे कॉरिजिबल का अपोजिट इनकॉरिजिबल। corrigible means who can be corrected, and incorrigible means, or incorrigible liar means a liar who cannot be corrected. Okay स्टूडेंट्स, हम इनकॉरिजिबल वर्ड को सिर्फ लायर के साथ ही यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कॉन्ज्यूमेट के केस में या नोटोरियस के केस में। इनकॉरिजिबल फॉल्ट भी हो सकता है, ऐसा फॉल्ट जिसे ठीक ना किया जा सके, या फिर इनकॉरिजिबल क्रिमिनल भी हो सकता है। ओके ऐसे और भी वर्ड्स के साथ हम इनकॉरिजिबल एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ लायर, हु इज इनवेटरेट लायर। अ लायर हु हैज ग्रोन ओल्ड इन हिज हैबिट ऑफ लाइंग, मतलब वो लायर जो इतने टाइम से झूठ बोल रहा है कि वो बूढ़ा हो गया झूठ बोलते बोलते। ओके उसके लिए झूठ बोलना एक एक्टिविटी, एक हैबिट बन चुकी है, यूजुअल हैबिट बन चुकी है उसकी, राइट। फॉर हिम लाइंग इज अ फ्रीक्वेंट एंड यूजुअल एक्टिविटी। ओके सो इनवेटरेट को डिटेल में उसके रूट वर्ड से डिस्कस करने से पहले हम एक और वर्ड पढ़ लेते हैं, विच इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड, वेटरन। A veteran is an old, experienced, well-knowledged guy in his field. मतलब अपनी फील्ड में उसे अच्छे से नॉलेज होती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, and he has grown old in this field. Okay, it is commonly used for armed services or forces officials. Example आपने सुना भी होगा जैसे veteran soldier. आप एक और अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं इससे अलग, वेटरन डॉक्टर। ओके तो चलो अब ये दोनों वर्ड्स इनवेटरेट और वेटरन हम इसके रूट वर्ड से डिस्कस कर लेते हैं। द रूट वर्ड इज वीटस विच मीन्स ओल्ड। ओके इनवेटरेट और वेटरन दोनों में ही वीटस वर्ड मॉडिफाइड फॉर्म में यूज हो रहा है, एज यू कैन सी। अब ये ओल्ड वर्ड से कैसे रिलेटेड है दोनों वर्ड्स, देखो। इनवेटरेट लायर के केस में एक इंडिविजुअल अपनी लाइंग हैबिट्स में या झूठ बोलते इतना पुराना हो चुका है कि उसको झूठ बोलने की आदत हो गई है, एक यूजुअल एक्टिविटी, एक यूजुअल हैबिट बन चुकी है झूठ बोलना उसके लिए। ओके एंड वेटरन के केस में एक इंडिविजुअल अपनी फील्ड में इतना पुराना हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुका है और बहुत वेल नॉलेज हो चुका है। ओके आप एक बात यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि इन यहां पर यूज हो रहा है, बट इन दिस केस इन यहां पर अपोजिट सेंस में यूज नहीं हो रहा है। लाइक मैं आपको एक वर्ड भी दे सकती हूं, इनसाइड, राइट। अब साइड का अपोजिट तो इनसाइड नहीं होता ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके सो इनवेटरेट यहां पर अपोजिट सेंस में नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लायर, कॉन्जेनाइटल लायर। Someone who is a liar by birth or who has learned lying in mother's womb. ऐसा लायर जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ये तो जन्म से ही झूठा है, जैसे कि हम बोल देते हैं ना कि ये तो इतना झूठ बोलता है कि जन्म से ही झूठा है। Now let us discuss its root word which is genesis, which means birth or origin. कॉन्जेनाइटल के मीनिंग को उसके रूट वर्ड से समझने से पहले हम कुछ और वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं विच आर कॉमनली यूज्ड। ओके द फर्स्ट वर्ड इज जेनेटिक्स, द साइंस दैट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन्स, एज यू नो दैट जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए जिस पर आपके बॉडी के ट्रेट्स डिपेंड करते हैं, जैसे आपका आई कलर हो गया या हेयर कलर हो गया या हाइट हो गई। ओके सो
जेनेटिक्स इज द साइंस जिसमें हम जीन्स के ट्रांसफर होने के बारे में पढ़ते हैं. Here comes the next word, genital. Genital are sexual organs for reproduction or giving birth. Okay. Next is genealogy, the study of family tree or ancestral origins. It is a type of study in which we study about the genes, but here in this case we study about an individual's family tree or his ancestral origins. Okay. तो अभी हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, जेनेटिक्स, जेनाइटल एंड जीनियोलॉजी. ये तीनों वर्ड्स का रूट जेनेसिस ही है, विच मीन्स बर्थ और ओरिजिन. ओके. यहाँ पर जीन्स वर्ड भी जेनेसिस वर्ड से ही आया है. एक जीन्स ही डिसाइड करते हैं ना कि आपके बर्थ के टाइम पे आपके कौन से ट्रेट्स होंगे, आई कलर, हेयर कलर, राइट. So after discussing these words, let us come to our main word, which is congenital. तो congenital का जनरल मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है. Anything that happens during birth or at the time of birth. See, how can I write congenital? I can write it as con plus genital. Okay. con का यहाँ पर मतलब हो गया together, मतलब congenital मतलब ऐसी चीजें जो जन्म से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हूं. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू congenital. फर्स्ट एग्जांपल इज congenital defects. मतलब ऐसी कमी होना आपकी बॉडी में, ऐसा डिफेक्ट होना जो जन्म से ही हो. जैसे आँख में कोई प्रॉब्लम होना जन्म के टाइम से ही, या और इन योर ईयर. ओके. द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक congenital traits. ओके. congenital traits मतलब ऐसे traits जो जन्म से ही हो. congenital इज रिलेटेड टू बर्थ. ओके. जन्म से ही होना. ऐसे ट्रेट्स कौन से हो सकते हैं? आपका आई कलर हो सकता है. ओके. आपका हेयर कलर हो सकता है, राइट. दीज 2 एग्जाम्पल्स गिव द लिटरल मीनिंग to the word congenital, as defects or traits can be seen at the time of birth. Okay. But we can use the word congenital in a figurative sense as well, where it explains the very early existence of some quality. जैसा कि हमने congenital liar के केस में देखा था. ओके. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फिगरेटिव सेंस में. congenital liar मतलब इतना झूठ बोलता है कि हम ऐसा कह देते हैं कि ये जन्म से ही झूठा है, इतने टाइम से झूठ बोलता आ रहा है. ओके. और यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल एज congenital fear of dark. मतलब अंधेरे से बहुत डर लगता है, कि बहुत टाइम से उसे डर लगता है, कि हम ऐसा बोलेंगे इस केस में कि वो जन्म से ही डरता है अंधेरे से. ओके. Students, I hope you have understood that the word congenital can be used in both literal and figurative sense. When we use the word congenital in figurative sense, we consider something to be so deep rooted in one's personality that we relate it as if it existed since birth. Okay. But obviously the habit, say lying, as we discussed earlier, as congenital liar, cannot actually develop at the time of birth. Okay. With this, we conclude part 1 of session 2, where we discussed about the different types of liars. In part 2 video of this session, we will continue with the same topic. So, goodbye for now. See you soon in the next video of Vocabulary by EduSite. And if you have any query, please leave a comment in the comment section. Please leave a message. Please subscribe to our channel if you haven't.
and press the like button if you find this video fruitful, and share it also with your friends. So bye bye, take care, stay safe, stay healthy, and keep learning.